Morning, ma'am. Good morning. Good morning, madam. Good morning. You all can hear me, right? Hello? Ma'am, did you say something to me? No, I'm saying, can you hear me? Ma'am, your voice is a bit low. Now? Now is it fine? Uh, Yes, fine. yes. Yes, ma'am. Okay. We'll wait for a while till the others join. If they don't, then we'll start, okay? Yeah, ma'am. All right. So, like we did the last time, we'll start with a few read alouds and then we'll go to reorder, like we discussed. Okay. So, I'm sharing a screen and we can start reading from that. Just a minute.
I hope you all can see the screen. All right. I'll just tell out the names so they can start reading if they don't have an issue with the network connection or anything. Avinash, if you're fine, can you start with the eighth one? Just read the eighth one for me. Okay. Hello. Yeah. Yes, madam. I can start. No issue. Yeah. Okay. Yeah. So before the time of Alexander the Great, the only Eastern people who could be compared with the Greeks in the fields of science and philosophy were from the Indian subcontinent. However, because of little is known about Indian chronology, it is difficult to tell how much of their science was original and how much was the result of Greek influence. Good. So you didn't make many mistakes. ये जो आपने जितना fluctuate किया ना, I just wanted to be with a little energy, okay? I mean, it was fine, it was perfect. The fluctuations and the intonations were fine. I just want a little more energy, ठीक है? अभी मैं energy हर बार इसलिए बोलती हूँ for everyone because it just makes it sound good. It makes it sound, like you've not just woken up from your sleep. Maybe you have, but then you don't have to show it in your speech, right? Okay, madam. Yeah. So just a little more energy. Yeah. Dhaval, can you do the next? Hello, Dhaval, are you there? Yes, ma'am. Okay. Can you do the next one for me, the ninth one? Yes, ma'am. Okay. Just a minute, ma'am. No problem. You can have a read and then you can start. Okay. Yes, ma'am. Yeah. While far fewer people these days write letters and therefore have less use for stamps, there are still a few categories of stamp which attract collectors. Stamps in common use for an indefinite period until the price goes up are called definitive issues, while a more collective types of stamps is the commemorative issue honoring people, events and anniversaries. Okay. अब एक तो जो बीच में आपने गलती की तो आपने वो ओ सॉरी बोल दिया, वो शायद अभी बोला, बट कोशिश करना कि वैसा आप ना करो, ठीक है? अगर गलती हो गई है तो जस्ट लेट इट गो. दूसरा, आप है ना एस बहुत ऐड कर रहे हो, जैसे कि आपने कलेक्टिव टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स बोल दिया था, जबकि वहां पे टाइप और स्टैम्प है, एस नहीं है. तो Okay. आप कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वर्ड ऐड करते हो तो एक्चुअली गलत वर्ड बन जाता है एंड उसकी डिडक्शंस होते हैं. तो डोंट ऐड एस. ये एस ऐड करने की हमारी आदत रहती है, हम कई जगहों पर एस ऐड कर देते हैं, तो कोशिश करनी है कि वो नहीं हो उनसे. ठीक है? ठीक है मैडम. ये जो लास्ट लाइन में जो टाइप्स ऑफ स्टैम्प इज द बाद में उसे कैसे बोलते हैं? कोमेमोरेटिव. कोमेमोरेटिव. ओके मैडम. Dipen, can you do the next one for me? Yes, ma'am. In the second quarter of the 19th century, a rapidly growing middle class created a great demand for furniture production. Yet, at this stage, while machines were used for certain jobs, such as car decoration, there was no real mass production. The extra demand was met by numerous woodworkers. Mass production came later, and the quality of domestic furniture declined. Okay, good. वो सिर्फ एक छोटी सी जगह पे आप थोड़ा सा फंबल हुए थे, but then otherwise it was fine. Okay. Yeah. Farzan, can you do the next? Yes, ma'am. Okay, 11th is the one for you.
In the Middle Ages, the design and the use of flags were considered a means of identifying social status. Flags were therefore the symbols of not of nations, but of the nobility. The design of each flag resembled the devices on the noble's coat of arms, and the size of the flag was an indication of how high the owner stood in the nobility. Good. So वो ऊपर एक mistake हुई थी वो symbols वाले portion में. उसके अलावा it was good. And like I said, when you have very small words jumbled together, no, just be careful कि वहाँ गलती हो सकती है हमसे, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है. ठीक है, जैसे कि second line में it was flags were therefore the symbols not of nations but of the nobility. अब वहाँ पे कॉमा भी काफी सारे थे और आप flags were के बाद pause दिया आपने, लेकिन आपने therefore के बाद pause नहीं दिया. ठीक है, Yes, ma'am. तो उन चीजों का भी ध्यान रखना है. Where there are many commas, where there are many small words together in a sentence, be very careful. Okay. 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 Ishan, go ahead. I guess Dehuti, right? Is Dehuti there? Hi, ma'am. Pooja here. Pooja. Okay, Ishan. Dehuti is not here. ठीक है. तो पूजा आप ये कर लोगे 12th वाला, if you're okay. Yeah, sure. Okay. Yeah, I'm done. Yeah. Yeah. Market research is a vital part of the planning of any business. However, experienced you or your staff may be in a particular field. If you are thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. Okay. So it was good. एक pronunciation error था वो सिर्फ आपने जब vital बोला, it is called vital. Vital. Okay, Vital. vital. Very good. Jigna, can you do the next? Yes, ma'am. Not a lot is known about how the transportation of goods by water first began. Large cargo boats were being used in some parts of the world up to 5,000 years ago. However, sea trade became more widespread when large sailing boats traveled between ports carrying spices, perfumes, and objects made by hand. Okay. It is called spices. Spices. Okay. Spices. हाँ. Spices. Spicy नहीं Spices. बोल सकते. वो अच्छा, species में अपन species ऐसा बोलते हैं. But this is Okay. spices. spices. Okay, ma'am. Mahavir, can you do the next one? Hello, Mahavir, are you there? नहीं है, निकल गया. Okay. Hiren, if you're there and you're okay, can you do the 14th? Okay. Mehul. Yeah, good morning, ma'am. Mehul Sharma here. Yeah. Good morning. Yeah. Can you do the 14th one for me? Can you read the Yes. 14th? Sure. Yeah. When the young artist was asked, he had started by sitting by a window at home. He then drew his face from the photograph and replaced the buildings which were outside the window with trees. This gave the picture a softer, more artistic background. Okay, good. So I could only hear second line से पहले दो line वो network issue की वजह से शायद नहीं सुनाई दिए मुझे. But other than that, it was good. Like I said, you can just
add a little more energy and थोड़ी सी पेस अगर आप कम कर सको, क्योंकि आई डोंट नो यही सेम पेस आपकी डिस्क्राइब इमेज में रहेगी या नहीं, ठीक है, थोड़ा सा कम अगर आप फास्ट बोल पाओ तो इट्स फाइन, ठीक है, जैसे कि he then drew his face from the photograph and replaced the buildings which were outside the window with trees. This gave the picture a softer, more artistic background. Okay. ये तो ये पेस इज जनरली एडवाइसेबल, क्योंकि फिर डिस्क्राइब इमेज में कैसा होता है कि हम सोच सोच के बोलते हैं ना, तो इतना टाइम नहीं मिलता ज्यादा सोचने का एंड हम ज्यादा स्पीड में बोल भी नहीं पाते, तो देन अपन का रीड अलाउड का स्पीड पेस एंड डिस्क्राइब इमेज का पेस अलग हो जाता है, विच इज नॉट राइट, आपकी फ्लुएंसी फिर नहीं पता पड़ती है, तो जस्ट ट्राई टू मेक इट मोर फ्लुएंट. ओके, तेजस यू देयर? Yes. Okay, so can this is just the 15th one for me. Sorry. Yeah. Can I start? Yeah, you can start. Human needs to use energy in order to exist. So it is unsurprising that the way people have been producing energy is largely responsible for current environmental problems. Pollution comes in many forms, but those that are more concerning because of their impact on health, result from the combustion of fuels in power stations and cars. Good. So it was good. Like I said, see, for men specifically, मैं आप लोग में energy इसलिए बोलती हूँ क्योंकि females have a very sharp tone, तो उनको इतना energy डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो generally कुछ भी बोलती है तो ऐसा ही लगता है कि जोर से बोल रही है. But for men, because आपके vocals बहुत bass वाले होते हैं and when you speak and when we speak, we are more clearer because we have, I don't know why we have more clearer vocals. तो आप लोगों को ना थोड़ा और एक्स्ट्रा एनर्जी डाल के थोड़ा जोर से बोल के क्लियर करना पड़ता है. अगर आप एकदम धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो वो वर्ड्स अंदर ही अंदर जंबल हो जाते हैं. तो विच इज व्हाई आई एम सेइंग थोड़ा सा और जोर से बोलिए तो इट साउंड्स मोर क्लियर, इट इज मच मोर वोकली क्लियर. ठीक है, जस्ट अ लिटिल मोर लाउडर इफ यू कुड डू इट. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था फॉर रीऑर्डर. ठीक है, नाउ फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल दिस माइट बी अ न्यू टॉपिक एंड आप लोग शायद पहली बार ही अटेंड कर रहे हो. आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू. रीऑर्डर इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग. ठीक है, हम लोग ने स्पीकिंग से चालू किया था एंड हम स्पीकिंग पे ही वापस जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. बट फॉर टुडे आई वाज टू टेक दिस फॉर सागर, बट सिंस ही इज नॉट देयर, उनको रिकॉर्डिंग ही देनी पड़ेगी एंड बाकी सब सिर्फ एक ओवरव्यू की तरह इस सेशन को ले सकते हैं. हम वैसे भी इस सेशन में लेटर ऑन डिटेल में आएंगे. ठीक है, नाउ रीऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग. रीडिंग का जो आपका सेक्शन रहता है उसका एक टास्क होता है रीऑर्डर. अब आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा कि आपको वापस वो सेंटेंसेस ऑर्डर में लाने हैं. ठीक है, आपके पास कम से कम 4 या 5 सेंटेंसेस का एक क्वेश्चन रहता है. तो आपकी स्क्रीन में 2 डिविजन होते हैं. लेफ्ट साइड में आपके वो सेंटेंसेस दिए जाते हैं आपको, जो शायद सही ऑर्डर में हो सकते हैं, शायद जम्बल्ड ऑर्डर में हो सकते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो लोग उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ना वो एकदम सही ऑर्डर में ही होता है. ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती हमें उसको रीऑर्डर करने की, लेकिन कभी कभी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर. तो आपको क्या करना है, आपके हिसाब से उन 4 या 5 सेंटेंसेस में से जो भी पहला आएगा उसको आपको ड्रैग करके पहले रखना है. ड्रैग कर सकते हैं या तो एक एरो बटन भी आता है. ठीक है, तो आपको ड्रैग करके पहले राइट साइड में एक कॉलम में लेके जाना है एंड देन सेकंड वाले को लेना है, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ एंड देन फिफ्थ, व्हाटएवर इज द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू यू. तो अब इसमें तकलीफ ये होती है कि हमें नहीं पता पड़ता कि हम चालू कहाँ से करें या हमारा एक्चुअल फर्स्ट सेंटेंस होना क्या चाहिए. अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आपका फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आ रहा है, देन एवरीथिंग जस्ट गोज विद द फ्लो. ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये होता कैसा है. just give me a second. Yeah, so you all will be able to see a screen in some seconds.
आई होप यू ऑल आर एबल टू सी स्क्रीन. सो अब जैसे इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है, देयर आर टू सेक्शन. सोर्स मतलब जो क्वेश्चन आपका है, एंड टारगेट मतलब जहाँ पे आपको वो आंसर रखना है. ठीक है. नाउ सोर्स में जो उन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं, 4 सेंटेंसेस है अपने पास. ठीक है. अब ये ना उन्होंने ऑर्डर में नहीं दिए, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सबसे पहला सेंटेंस कहाँ से चालू हो रहा है, बट से. सो बट वी कैन नॉट डिनाई द बेनिफिट्स ऑफ NEM एंड टेक्नोलॉजी. अब जनरली आप अगर कोई एक पैराग्राफ फ्रेम करने की कोशिश करोगे तो आप बट से सेंटेंस नहीं चालू करोगे, राइट. सो आप हमेशा कैसे चालू करोगे, जैसे कि हम जब ऐसे में बात करते हैं तो हम मेन हमारा टॉपिक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं. तो रीऑर्डर पैराग्राफ में भी हमें वही फॉर्मेट फॉलो करने की कोशिश करना है. और स्पेसिफिकली जब भी ऐसे कोई पैराग्राफ आते हैं तो हमें वी हैव टू फाइंड द नाउन जिनके बारे में एक्चुअली वो टॉपिक बात कर रहा है, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में हमें सेंटेंस सेट करना है. तो अब पहले वाले सेंटेंस में हमें दिख रहा है कि ये किसी तो NEM एंड टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स की बात कर रहा है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस में भी इट टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी. तो जो वर्ड रिपीट होते हैं, जो वर्ड के सिनोनिम्स आते हैं, जो वर्ड नाउन्स है, उनको हमें ध्यान में रखना है. तो हमें फर्स्ट सेंटेंस में भी टेक्नोलॉजी दिखा, सेकेंड सेंटेंस में भी हमें टेक्नोलॉजी दिख रहा है. ठीक है. टेक्नोलॉजी हैज ड्रॉबैक्स बट ऑल्सो बेनिफिट. ओके. अब ये सेकेंड वाला सेंटेंस में बोलता है टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स भी है और बेनिफिट्स भी है. थर्ड सेंटेंस बोलता है फॉर एग्जाम्पल अ मोबाइल फोन. तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मोबाइल फोन का. फोर्थ सेंटेंस बोल रहा है someone driving a car and calling causing an accident or hazard. अब जब भी आप रीऑर्डर करो तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड करना है. इंडिपेंडेंट मतलब जिसके ऊपर कुछ और नहीं आ सकता और जो डिपेंडेंट नहीं है किसी और सेंटेंस के ऊपर. ठीक है. तो इन चारों सेंटेंसेस में से एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस मुझे ये लगता है, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स भी है और बेनिफिट्स भी हैं. फिर अगर आप देखोगे तो ये थर्ड सेंटेंस में मोबाइल फोन का जिक्र हुआ है और फोर्थ सेंटेंस में अगेन मोबाइल फोन के बारे में ही कुछ कनेक्ट करके उन्होंने बताया है कि समवन जो ड्राइव कर रहा है एंड देन ही इज आल्सो कॉलिंग विल कॉज एन एक्सीडेंट और अ हैजार्ड. ठीक है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट कर सकती हूँ. थर्ड और फोर्थ मेरे साथ में जाएंगे मेरे हिसाब से. अब मुझे ये देखना है कि थर्ड पहले जाएगा या फोर्थ पहले जाएगा. अगर आप रीड करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि पहले हमें थर्ड को प्लेस करना पड़ेगा. हम फोर्थ वाला सेंटेंस बोल के फिर हम फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन नहीं बोलेंगे, पहले हम एग्जाम्पल बोलेंगे और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट. तो वी आर प्लेसिंग थर्ड फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन एंड देन वी आर प्लेसिंग फोर्थ दैट समवन ड्राइविंग अ कार एंड कॉलिंग कॉजिंग एन एक्सीडेंट और हैजार्ड. अब ये हमारा सेट हो गया. लास्ट में हम बोल सकते हैं बट we cannot deny the benefits of NEM and technology. तो ये हमारा ऑर्डर हुआ. अगर हम आंसर चेक करेंगे तो हमें वही मिलेगा. पहले उसने टेक्नोलॉजी वाला सेंटेंस लिया है, फिर उसने बोला है फॉर एग्जाम्पल अ मोबाइल फोन, फिर उसने बोला समवन ड्राइविंग अ कार जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया, एंड देन लास्ट में उसने बोला बट वी कैन नॉट डिनाई द बेनिफिट्स ऑफ NEM एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो ये तो बहुत सिंपल सा था, बहुत छोटा सा था. we'll take one more explanation के लिए and या सो अब इसमें आपके पास 5 सेंटेंसेस है. ठीक है. तो ये वाला मैं ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन द नेक्स्ट वन जो हम लेंगे उसमें वील हैव अ डिस्कशन काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है. पिछले वाले में किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैज अ डाउट इन द लास्ट वन दैट वी टॉक? मैम जो लास्ट वाला जो आया ना, जो 1 पे 1 नंबर, ठीक है, उसको मैं सेकंड क्यों नहीं ला सकता हूँ? उसमें रॉन्ग क्या है? टेक्नोलॉजी हैज ड्रॉबैक्स बट आल्सो बेनिफिट्स. हाँ, वो तो फर्स्ट ही है, ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला है ना, उसमें भी मैम टेक्नोलॉजी तो वर्ड तो है, तो वो एक्चुअली सेकंड फिर आना चाहिए ना. बट वी कैन नॉट डिनाई द बेनिफिट्स ऑफ NEM टेक्नोलॉजी. हाँ, वो वाला. हाँ. तो देखो, अब अपन ने टेक्नोलॉजी हैज ड्रॉबैक्स बट आल्सो बेनिफिट्स का अपन ने we have made that statement as the start of our paragraph. ठीक है. तो आप पहले बेनिफिट की तो बात करोगे ना. ओके. है ना. बेनिफिट की बात करोगे, फिर आप बोलोगे ना कि हम डिनाई नहीं कर सकते बेनिफिट्स ऑफ NEM एंड टेक्नोलॉजी. ओके फाइन. ठीक है. एंड प्लस नो whenever we have this but, therefore or something which is concluding, ऐसा
कि कंक्लूजन में अपन जो भी लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखते हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इन कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड होता बट की जगह पे, ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट वी कैन नॉट डिनाई द बेनिफिट्स ऑफ MEM एंड टेक्नोलॉजी। तो ये ना एक तरीका होता है कि पहले हम एक पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल देते, एक पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ समझाते थे, और फिर हम इन कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट लेते हैं, फिर हम बट वाला पार्ट लेते हैं, देयरफॉर या कॉन्सिक्वेंटली वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज लाइक दैट व्हेनेवर यू गेट सच पैराग्राफ जहाँ पे ये बट और therefore, furthermore, additionally ऐसे सब चीजों का इस्तेमाल किया हुआ होगा, तो उसके पहले एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन दे देने का एंड देन उनको रख देने का। ओके ओके फाइन। ठीक है, एनीबडी एल्स, किसी और को कोई डाउट है? Hello, ma'am. यस। Is there any negative marking in this section? मैं स्कोरिंग के ऊपर आती हूँ, मैं आपको एक और समझा देती हूँ। अब जैसे ठीक है, चलो समझ ही लो, अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, just a second, I'll close my door, there are some vegetable vendors making a lot of noise. Okay. या तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है, नेगेटिव मार्किंग इसमें कहीं पे नहीं है। इसमें सिर्फ तकलीफ ये होती है कि अगर आपने सही पैर बनाया है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, अगर आपने सही पैर नहीं बनाया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 एक पैर है, और 2 ऊपर आ रहा है, 3 नीचे आ रहा है। अगर आप 3 को ऊपर डाल के 2 को नीचे लिखोगे तो वो पैर नहीं बनता, ठीक है। तो 2 and 3 इज अ पैर, 3 and 4 इज अ पैर, एंड 4 and 1 इज अ पैर। तो अगर आपके तीनों पैर सही है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब 100% मार्क्स। ओके, एंड अगर आपने से फॉर एग्जांपल जैसे कि फरजान बोल रहे थे, अगर आपने फर्स्ट वाले पॉइंट को सेकंड पे ले लिया है, ठीक है, सेकंड के नीचे आपने फर्स्ट डाल दिया है, तो 2 और 1 आपका कोई पैर नहीं बनेगा, 3 और 4 आपका एक ही पैर बनेगा, और 4 और 1 भी आपके पैर नहीं बनेंगे, तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिलते हैं, ठीक है। यू जस्ट गेट 1 पॉइंट फॉर द पैर 3 and 4, ठीक है। So this is how you are scored. Negative marking इसमें नहीं होती है। Okay, ma'am. मैडम पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होते हैं? नहीं, मैं समझी नहीं क्या। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होते हैं? ओके, सो इट डिपेंड्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके यू हैव 3 पेयर्स, तो आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एंड पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पर क्वेश्चन आपको 100% पे जज किया जाता है। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 100% को अगर हम 3 भाग में डिवाइड करें तो पर पॉइंट आपको यू गेटिंग 33.3% ऐसा जस्ट अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट। तो एंड इसके कम से कम 2 to 3 रीऑर्डर्स आते हैं कम से कम, तो Okay. उसके अकॉर्डिंग यू गेट मार्क्स, ठीक है। सो वी कमिंग टू दिस, ये वाला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले हम क्या करते हैं, हम पहले सारे सेंटेंसेस समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इन द अर्बन एरियाज 75% of individuals who have taken the test have a heart age that is at least 1 year older than their real age. अब इसमें ना आप कीवर्ड पता करने की कोशिश करो। पहला कीवर्ड है अर्बन एरिया, फिर है 75% ऑफ इंडिविजुअल, फिर है जिन्होंने टेस्ट लिया। तो अब यहाँ पे कुछ टेस्ट की भी बात हो रही है, हार्ट एज की बात हो रही है, एंड देन उनकी उम्र एटलीस्ट 1 year older than their real age, ठीक है। तो इतने कीवर्ड हमारे फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट से a campaign has been launched to help people find out their heart age. एक कैंपेन लॉन्च हुआ है जो हेल्प करता है लोगों को उनकी हार्ट की एज फाइंड करने में, ठीक है। थर्ड से the free online heart age test asks people some basic lifestyle questions including blood pressure and will give an instant estimation of someone's heart age. तो जो फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट हो रहा है वो कुछ बेसिक लाइफस्टाइल क्वेश्चंस पूछता है लोगों को उनके ब्लड प्रेशर रिलेटेड, एंड देन उनको एक इंस्टेंट एस्टिमेशन देता है उनके हार्ट एज के बारे में। फोर्थ पॉइंट से दोज हु हैव अ हार्ट एज हायर देन द रियल एज आर एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। जिनको ऐसा लगता है मतलब जिनका हार्ट एज इज a little higher than the real age, say for example मेरी उम्र अभी 20 साल है और अगर मेरी हार्ट की एज 25 है तो उनको हार्ट अटैक का इंक्रीज रिस्क रहता है, मतलब उनको हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का। फिफ्थ पॉइंट से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज क्रिएटेड एन ऑनलाइन टेस्ट इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हार्ट डिजीज और स्ट्रोक। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट किया है जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स एंड हार्ट डिजीज या स्ट्रोक कम हो जाए, ठीक है।
अब अकॉर्डिंग टू मी, से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे पहला मेरा हार्ट एज और पीपल के बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है सेकेंड लाइन में, तो मैं इसको पहले ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ले लिया, अ कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड टू हेल्प पीपल फाइंड आउट देयर हार्ट एज। एक कैंपेन लॉन्च हुआ है। फिर मुझे लगता है कि पहले मुझे ये लेना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, क्योंकि वहीं से चालू हो रहा है ऑनलाइन टेस्ट के बारे में डिस्कशन, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक ऑनलाइन टेस्ट निकाला है जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ डेथ्स और हार्ट डिसीज कम कर सकते हैं एफर्ट्स में, ठीक है। अब इस टेस्ट में होता क्या है, तो द फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट क्वेश्चंस पूछता है उनके ब्लड प्रेशर रिलेटेड और फिर एस्टिमेशन देता है किसी के हार्ट एज के बारे में। अब आई फील ये वाला लाइन, ठीक है, एस्टिमेशन की क्योंकि बात आई है तो हम बोल रहे हैं जिनका हार्ट एज हायर है तो उनके हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो ज्यादा है। एंड देन ये लास्ट वाला लाइन, in the urban areas 75% of individuals who have taken the test have a heart age that is at least 1 year older than their real age, ठीक है। अब I'm not saying that this is the correct order. आप लोग ने भी रीड किया है और now I want you all to also think कि क्या ये सही है कि क्या मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। Anybody who feels कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए can answer. 1 ऊपर आएगा 4 नीचे। ओके, ठीक है। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि ऊपर हार्ट एज के बारे में एस्टिमेशन की बात हुई है और नीचे उसका टेस्ट भी करवाया लोगों ने, ठीक है, आप लिंक कर रहे हो, ठीक है। हाँ, दिस इज द राइट वे एक्चुअली। थर्ड में जब हम बोल रहे हैं कि विल गिव एन इंस्टेंट एस्टिमेशन ऑफ समवन्स हार्ट एज, ठीक है, फिर वो अपना एक फिगर बता रहा है कि अर्बन एरियाज में 75% लोगों ने टेस्ट लिया और उनका हार्ट एज उनको पता पड़ा कि एटलीस्ट 1 year older than रियल एज, उनका रियल एज जो है उससे 1 साल कम से कम इट इज ओल्डर, ठीक है। एंड देन वो कंक्लूजन में बोल रहा है कि जिनका हार्ट एज एक्चुअली हायर होता है उनको हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा रहता है। ओके, और किसी को कुछ लगता है मुझे चेंज करने की जरूरत है ऐसा कुछ? That fifth one will become first. Ministry of Health has created online test. ठीक है, मैं आपके हिसाब से डाल देती हूँ एंड देन विल चेक। एनीबॉडी एल्स? ऑलराइट मैडम ये रीऑर्डर की स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रही, किसी को नहीं दिखाई दे रही? कैन एवरीबॉडी सी द स्क्रीन? आई मीन क्योंकि मेरा स्क्रीन शेयरिंग तो चालू ही है। यस मैम, नाउ आई कैन सी। आई कैन सी, ओके, ऑलराइट। हाँ, तो जैसे कि हमने आंसर में देखा, पहले कैंपेन वाला पॉइंट ही आएगा एंड देन मिनिस्ट्री वाला आएगा, ठीक है। अब वो क्यों, जिन्होंने भी मुझे बोला था, आई डोंट नो हु सेड दैट, बट जब आप व्हेन यू आर ऑर्डरिंग समथिंग नो, हमेशा ना वर्ड्स को लिंक करो। अब जैसे फिफ्थ वाले में भी हमको ऑनलाइन टेस्ट दिख रहा है, थर्ड में भी ऑनलाइन टेस्ट दिख रहा है, फिर वापस फर्स्ट वाले पॉइंट पे हमें टेस्ट दिख रहा है एंड देन फोर्थ में हमें टेस्ट दिख रहा है, ठीक है। आई मीन फोर्थ में हमें कंफ्यूजन वाला पार्ट दिख रहा है। तो जब ऐसी कोई वर्ड एक के पीछे एक लग रहे हो ना, तो उनको मोस्टली साथ में ही रखना है। कैंपेन कहीं पे भी नहीं था, कैंपेन के बारे में और कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो आप ऊपर रख सकते हैं, वो यू कैन मेक इट एज योर इंट्रोडक्शन सेंटेंस, और फिर आप बोलो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक ऑनलाइन टेस्ट बनाया कैंपेन के जरिए, ठीक है। दैट इज व्हाई वी प्लेस कैंपेन वाला सेंटेंस ऊपर एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाला नीचे, ठीक है। Any doubts in this? Anybody? I guess Abhay has joined just a few moments back. Abhay, आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? मैं आपको गुड मॉर्निंग मैम, मैं आज ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ एंड आई डोंट नो अबाउट द पीटी एक्चुअली। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। तो एक्चुअली हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है, मुझे ध्यान नहीं था कि आपने कब ज्वाइन किया। दिस इज रीऑर्डर, ठीक है। आप आज के सेशन को थोड़ा लाइटली ले लो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम नेक्स्ट सेशन से बेसिक से ही जाएंगे। तो ये वाला एक्चुअली बस फॉर ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइंड जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको रीऑर्डर करना है, ठीक है।
तो आज आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ लो, धीरे धीरे यू विल गेट इन टच विद इट। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। रीऑर्डर में कैसा होता है कि अब मैं आप समझ लेना, ठीक है, मैं नेक्स्ट वाला जब समझाऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने जी इसमें इतना कुछ आपको यस यस समझ लिया। ऑलराइट, विल डू वन मोर। ओके, नाउ आई वांट यू ऑल टू टेल मी, आप में से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको पहला सेंटेंस कौन सा लगता है। ठीक है, पहले हम लेफ्ट वाले सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस तो अब है, मैं आपके लिए समझा दूं। इसमें जी कैसा होता है रीऑर्डर में कि लेफ्ट साइड में आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं। अब हो सकता है कि ये सही ऑर्डर में हो सकता है कि ये सही ऑर्डर में ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि आपके हिसाब से पहला सेंटेंस कौन सा जाना चाहिए, फिर उसके नीचे कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके नीचे कौन सा आएगा और उसके नीचे कौन सा आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको सेट करना है अकॉर्डिंग टू द करेक्ट ऑर्डर कि इसके पीछे ये लग सकता है, इसके पीछे ये लग सकता है, ऐसा। ठीक है, तो पहले हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से हिप हॉप कल्चर emerged as a reaction to the gang culture and violence of the South Bronx in the 1970s and daily experiences of poverty, racism, exclusion, crime, violence and neglect. सेकेंड सेंटेंस मतलब वो फर्स्ट सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द इमर्जेंस ऑफ हिप हॉप कल्चर कि वो कैसे इमर्ज हुआ एंड क्या हुआ इन व्हाट टाइम। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे टाइम का जिक्र किया गया है तो उसका ध्यान रखना। सेकेंड सेज yet the hip hop project is not yet free from these difficult circumstances. Yet एक तो ना ये yet वर्ड का इस्तेमाल हुआ है ना, अगेन इट इज अ कनेक्टर जो कि हम कंक्लूजन में यूज करते हैं। ठीक है, फिर भी हिप हॉप प्रोजेक्ट अब तक इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से फ्री नहीं हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे हमें दिख रही है दीज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब चीजें तब आएंगी जब आप ऑलमोस्ट बहुत कुछ बोल चुके हो और एंड में आप कंक्लूड कर रहे हो, तो हम सोच सकते हैं कि सेकंड लाइन को हम कंक्लूजन में लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट से विदाउट दीज hip hop culture would never have been, and it is because these values remain at its core. These values, ठीक है, वो कोई values की बात कर रहा है तो हमें values ढूंढना पड़ेगा पहले। Remain at its core that hip hop is such a powerful agent of positive change, social change around the world. Fourth point says it necessarily embodies and values resilience, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटी एंड सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज की बात हुई तो हमें पता पड़ गया कि हमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिंक करना है। अब क्वेश्चन ये है कि हम थर्ड पॉइंट को ऊपर रखेंगे या फोर्थ पॉइंट को, तो ऑफ कोर्स हम फोर्थ पॉइंट को ऊपर रखेंगे क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज, हाँ तो वहाँ पे वैल्यूज की बात हुई है तो हम पहले वैल्यूज का नाम लेंगे और फिर हम बोलेंगे विदाउट दीज वैल्यूज। ठीक है, तो हमें ये पता पड़ गया कि फोर्थ ऊपर आएगा एंड थर्ड नीचे आएगा। अब फर्स्ट पॉइंट कौन सा जाएगा, तो ऑब्वियसली सेकंड तो हम फर्स्ट में ले नहीं सकते, तो हम फर्स्ट वाला जो है उसी को ले लेंगे क्योंकि उसमें एक तो टाइम का जिक्र भी हुआ है और वो टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि वो हिप हॉप कल्चर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, ओके, दीपेन ने ऑर्डर दिया है 1432। ओके, 1 4 3 एंड 2। किसी को और कोई डाउट है? I mean, किसी को लगता है कुछ और चेंज करना चाहिए यहाँ पे? All right, तो हम चेक करते हैं। The correct order is 1 4 3 and 2. ठीक है, so this is what you do whenever you get a pair, whenever you get an get a reorder के लिए क्वेश्चन, so हमेशा नाउन पता करने की कोशिश करो कि आप उसको लिंक कर सको। ठीक है, एक सेंटेंस के नीचे कौन सा वर्ड ऐसा है जो मैं ऊपर वाले सेंटेंस से नीचे वाले सेंटेंस में लिंक कर सकता हूँ। ठीक है, so in that way if you do, mostly your answers will fall into place. फिर दूसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है, ये जो कनेक्टर्स होते हैं येट, जैसे येट आया इस वाले रीऑर्डर में, देन देयरफॉर, फर्दरमोर, ऐसे कनेक्टर्स जब आते हैं तो दे ऑलमोस्ट कम टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है। ठीक है, we'll do one more. Sorry, this has been done by me. So, anyways, we can do it. I'll just reset it. Okay. So here are the 5 sentences. I want you all to do it. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप ऐसा कुछ सॉल्व कर रहे हो रीऑर्डर, आप टाइम सिर्फ 1 से 3 मिनट के बीच का ले सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको खुद मैनेज करने हैं। ठीक है, आपको कोई रोकने नहीं वाला। अगर आप चाहो तो एक रीऑर्डर में 10 मिनट निकाल सकते हो
कोई आपको रोकेगा नहीं, until and unless आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें कोशिश करना है कि हम इसको 1 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाए, ठीक है। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 9:38 होने ही वाले हैं, तो 38, 39, 40, 9:40 तक का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड चैट में आप अपने आंसर्स लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस। ओके, सो आई हैव अ फ्यू ऑप्शंस। अब क्योंकि मोस्टली आपने 1 और 2 को पहले रखा है तो मैं 1 और 2 पहले रख देती हूँ। वन, टू, 4, 3, 5 मेरे पास 2 बार आ चुके हैं, तो लेट्स टेक 1, 2, 4, 3, 5, ठीक है। 1, 2, 4, 3, 5। ओके, चेक करते हैं। करेक्ट ऑर्डर है 1, 4, 3, 2, 5। ओके, 1 तो सही है, पर ऊपर आएगा 4, 3, 2 एंड 5 again। 1, 4, 3, 2, 5। ओके, अब ऐसा क्यों? ठीक है, अब आपने सबने पढ़ तो लिया ही है, तो आई जस्ट गो ऑन एक्सप्लेनिंग, ठीक है। इट सेज Copernicus probably hit upon his main idea sometime between 1508 and 1514। जब भी आपके पास years आए ना, अगर उसने यहाँ पे सपोज 3 years उसने बोले हैं, जैसे कि 1508, 1514 एंड 1543, ठीक है। तो कोशिश हमेशा ऐसी करनी है कि जो सबसे छोटा वाला ईयर है ना वो ऊपर ही डाला जाए, ठीक है। तो इसलिए हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को ऊपर ही लेंगे, वेरिन 1508 की बात हो रही है, वो सबसे छोटा वाला साल है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट सेंटेंस। देन उसने उस फर्स्ट सेंटेंस में बोला है कॉपर्निकस का जो मेन आइडिया था वो कहीं ना कहीं वो 1508 से 1514 के बीच में वो उसके पास आया था, लेकिन
काफी सालों तक उसने उसके पब्लिकेशन को डिले किया, जो उसको प्रिंट करना चाहिए था वो उसने डिले किया ऑफ कंट्रोवर्शियल वर्क व्हिच कॉन्ट्रडिक्ट्स ऑल अथॉरिटीज ऑफ टाइम। ठीक है, काफी डिले हुआ। फिर उस बुक के बारे में बात की जा रही है कि द हिस्टोरिक बुक दैट कंटेन्स द फाइनल वर्जन ऑफ हिज थ्योरी, जिस हिस्टोरिक बुक में उसकी फाइनल वर्जन की बात हुई है उस थ्योरी की, डिड नॉट अपीयर इन प्रिंट अंटिल 1543। उसने बोला डिले हुआ, तो डिले कब तक हुआ? 1543 तक। ठीक है, द ईयर ऑफ हिज डेथ, जब उसकी डेथ हुई। एंड फिर अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स के अनुसार Copernicus received a copy as he was dying on May 24, 1543। अब हमने ये सेकंड वाला सेंटेंस नीचे क्यों प्लेस किया? क्योंकि ऊपर उसके डेथ की बात हुई, ठीक है, 1543, एंड देन दे सेड कि जब वो मर रहा था तब उसको एक कॉपी मिली। Then it says the book opened the way to a truly scientific approach to astronomy. It had a profound influence on later thinkers of the specific revolution, including such major figures as Galileo, Johannes Kepler, and Isaac Newton. ठीक है, then उस बुक में क्या था वो उसके बारे में बात हुई। So this is the correct order. Okay. All right, we'll do one more. ठीक है, here's the one for you. 1, 2, 3 and 4, 4 सेंटेंसेस है आपके पास एंड समय आपके पास 3 मिनट का है। 43 हुए हैं, आप 46 तक का टाइम ले सकते हैं। You can solve. Put the answers on the chat. ऑलराइट, तो मोस्टली आपने 4 1 3 2 बोला है, तो हम वो रखते हैं 4 1 3 2। Good. So 4 1 3 and 2 is the correct option. Now anyone can anyone explain me why जिन्होंने भी 4 1 3 2 बोला है? फरजान और anybody, फरजान, पूजा। मैम सबसे पहले तो थियरी और पॉलिसी की बात हुई है, तो पहले इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वही सेंटेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद जो 8th एडिशन जो बोला है ना,
ठीक है, और थर्ड सेंटेंस में न्यू फॉर द 8th एडिशन, तो इसके लिए वो साथ साथ तो आएंगे। आपने फर्स्ट और थर्ड को लिंक किया कि पहले आपने Yes. 8th एडिशन मेंशन किया एंड देन आपने बोला न्यू फॉर द 8th यस एडिशन। यस यस। ओके। और उसमें फिर थर्ड में ऑनलाइन असेसमेंट की बात हुई है, तो उसके बाद फिर थर्ड और सेकंड लिंक होगा। गुड, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट और ट्यूटोरियल सिस्टम की बात हुई है तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट ले सकते हैं स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स गेट इंस्टेंट टारगेटेड फीडबैक एंड इंस्ट्रक्टर्स कैन एनकरेज प्रैक्टिस विदाउट नीडिंग टू ग्रेड वर्क बाय हैंड। क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट बोला है तो उनको बाय हैंड उनको वर्क ग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गुड, दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली लिंक सेंटेंसेस के अंदर का वर्ड आप समझो और कोशिश करो कि उसके अंदर जो आपने समझा है ना वो कौन से और दूसरे सेंटेंस के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, you do like this, you can easily solve the reorders. All right. इसमें किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टास्क में what we did today? Anybody? किसी को डाउट नहीं है? All right. Ma'am, so we have to complete this task in 1 to 3 minutes, or we can get another time for that. See, कैसा होता है कि रीडिंग का जितने भी रीडिंग के 5 टास्क जो आते हैं वो आपके हिसाब से आपको टाइम करने, ठीक है, आप अपने हिसाब से आप चाहो तो एक टास्क में 10 मिनट भी निकाल लो जैसे कि मैंने बोला, तो कोई आपको रोकने नहीं वाला। लेकिन अगर आप वो करोगे तो आप पीछे के जो क्वेश्चन है ना उसमें टाइम नहीं दे पाओगे, वो फिर आपके छूट जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि कम से कम हमेशा प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आप जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर सके। अगर आप 1 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपके बाकी के क्वेश्चन सफर नहीं करेंगे। Okay, ma'am. ठीक है, इसीलिए बाकी कोई इश्यू नहीं है, आप चाहो तो 5 मिनट भी ले सकते हो। देयर विल बी रीऑर्डर जहाँ पे एक्चुअली आपको तकलीफ होगी एंड मे बी यू नीड मोर टाइम। ठीक है, एंड एक बार अगर आपने नेक्स्ट कर दिया तो वापस आप इस क्वेश्चन पे आ नहीं सकते हो। तो इफ अ क्वेश्चन इज एक्चुअली टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम देन you might as well just skip it. ठीक है? Okay, ma'am. एंड मैम इसमें लाइक कितने क्वेश्चंस होते हैं ये रीअरेंजमेंट? इसमें कम से कम 2 से 3 आते हैं, कम से कम। एंड ये कंपलसरी सेक्शन है ना, मतलब आएगा हाँ, ये? सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, इसमें कुछ भी ऐसा ऑप्शन में आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। Ma'am, बोलिए। so ma'am, it's like if suppose we have put the answers in order and then if we change our mind, we cannot change it. No, I mean because once you click next, you cannot come back to this question. Okay, okay. So before we click next, we can. Yeah, next click करने से पहले you can change the order any n number of times you want. Oh, but once you've done next, you cannot come back to the question again. all right. Yeah. Thank you. Anybody else? Hello, ma'am. हाँ, yes, Ray. Good morning, ma'am. Good morning. I have a question in speaking, madam. हाँ, बोलिए। Whenever we in any sentence giving a sentence in a figure form, like before Christ, normally in a sentence write BC. But बोलते हुए आपको full form बोलना है. If you know the full form. If you don't, हाँ, see, that is advisable. अगर आप जानते हो BC का full form आपको बोलने की जरूरत नहीं है, because generally हम ऐसे ही बोलते हैं 12 AD, 12 BC, ऐसा ही कहा जाता है when we are actually speaking. So अगर उसने full form bracket में दिया है तो वो पढ़ो, अगर उसने bracket में नहीं दिया है तो मत पढ़ो, ठीक है? Just let it go and जो उसने दिया है वही बोलो. Say for example उसने AD A.D. दिया है तो आप उसको सिर्फ AD ही पढ़ोगे, आप उसको full form नहीं बोलोगे. Or someone like giving etc. etc. हाँ. So we etc. just को अपन pronounce etc. नहीं बोलते, we have to speak etc. etc. Okay. Thank you, ma'am. कोई और क्वेश्चन? चैट में मैं एक और वर्ड लिख रही हूँ, ठीक है? ये जब भी आता है ना आपके सामने, जनरली रीड अलाउड में नहीं आता, पर अगर आया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म इज इन एसेंस. इसको अपन बचपन से दैट इज बोलते हुए आए हैं, पर वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वो सही तरीका नहीं है बोलने का. इसको बोलते हैं इन एसेंस. तो अगर किसी सेंटेंस के बीच में आपका ये आता है
तो आप इसको इन एसेंस प्रोनाउंस करोगे, जैसे कि हम ईटीसी को ईटीसी नहीं बोलेंगे, हम एक्सेट्रा बोलेंगे। सिमिलरली आई को आप इन एसेंस बोलोगे, ठीक है। Madam, can you repeat the full name of AD? Of this? AD before Christ and before AD. Full form of AD. Yes, yes. AD is Anno Domini. No domain. हाँ, इसलिए मैं आपको बोला वो उसका जनरली आपको क्या बोलते हैं, नहीं बोलने का आएगा, नहीं बोलते हम जनरली। जब भी ऐसा वर्ड आता है तो हम उसको सीधा एडी ही बोल देते हैं, वी डोंट से एनो डोमिनी। Okay, okay. ठीक है। एंड हमने आज जो प्रैक्टिस किया ना रीऑर्डर का, मैं उसका लिंक आपको भेज देती हूँ, ठीक है। तो यू ऑल कैन आल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम दैट। तो पीडी ट्यूटोरियल में, हाँ पूछिए। मैम ये तो मेरा तो फर्स्ट लेक्चर है, ये रीऑर्डर का जो आप बता रहे थे, तो आई गेस इसमें मतलब अगर आपका रीडिंग ज्यादा है तो ही आप इसके ऊपर कमांड ले सकते हो, राइट? और यस दैट इज ट्रू, रीडिंग के सेक्शन में आपको रीडिंग तो करना ही है, वो तो सही बात है, लेकिन इसमें ना आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। अगर आप एक सेंटेंस समझ रहे हो, ठीक है, और आपको पता पड़ गया कि इसका मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली आप उसको प्लेस तो कर ही पाओगे ना कि किसके पहले क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आपने ये कहीं और पढ़ा भी ना हो तो भी आप समझ तो जाओगे ही, क्योंकि व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस तो आप उसको प्लेस कर पाओगे, आप उसको समझ के ऑर्डर कर पाओगे, ऐसा, ठीक है। Anybody else? Any other question? मैंने चैट में आपको लिंक दी है पीडी ट्यूटोरियल की जो आज हमने प्रैक्टिस की है, आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, वरना मैं वैसे भी ग्रुप में फॉरवर्ड कर ही दूंगी, ठीक है। तो आई होप नोबडी एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चन। ऑलराइट, so I'll keep the lecture till here.